Hi everyone, welcome back to our very own channel. And today we are going to start with class 10, chapter number 1 of maths, real numbers. So let us begin. First of all, what are real numbers? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. तो whenever we talk about a number system, सो हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, जिनमें से एक टाइप होती है हमारी रियल नंबर्स की. तो अगर मैं बात करूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर्स अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, टिपिकल डेफिनेशन पे, तो रियल नंबर्स आर ऑल possible numbers that can be represented on continuous number line comprising both rational and irrational numbers. कंटिन्यूस नंबर लाइन, क्या मतलब है कंटिन्यूस नंबर लाइन का? हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर लाइन होती है, it can be a continuous number line also and it can be discontinuous number line also. तो मतलब क्या है, देखो, कोई भी नंबर जिसे मैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. नंबर लाइन पे हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं मेजरली. अगर मैं इन जनरल बात करूँ, इंटीजर्स में कैसे, जैसे कि 1 2 3 माइनस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, राइट. तो अब रियल नंबर क्या होगा, ऐसा कोई भी नंबर जिसे मैं इस टिपिकल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं. बेसिकली दिस इज़ अगर आप नीचे ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा. हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो. फिर हमारे पास आता है होल नंबर्स, जिसमें हमारे पास आते हैं सारे नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो. फिर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं, ऑल दी नंबर्स अलॉन्ग विथ, मीन्स all the numbers here implies what, all the whole numbers along with their negatives of integers. बेसिकली अगर मैं इन जनरल इंटीजर्स की बात करूँ तो क्या होते हैं, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो gives us integers. Then we have rational numbers. Any number that can be expressed in p by q form is a rational number, right? And now next, which is entirely different from all these numbers, is irrational numbers. Basically the numbers in roots, basically not the perfect roots, are irrational numbers. Also एक question पूछा जाता है basic in 1 mark का, pi, about pi. So pi is an irrational number. This should be crystal clear in your minds. And now all the rational and irrational numbers combine together to form real numbers. Perfect. Now next we have fundamental theorem of arithmetics. What does this fundamental theorem of arithmetics state? Every composite number can be expressed as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which the primes occur. Very important thing, every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the primes occur. So basically what does this imply is, we have कोई भी हमारे पास composite number हो सकता है, composite number which is not prime, basically which has more than two factors, number and one, number itself and one, that is a composite number. So any composite number, let's say we have 49, so this is a composite number. Now this 49 can be expressed as product of its primes, like 1, 7 and 49. These are the prime factors of 49, right? So this composite number 49 can be expressed as the product of its primes. How? 7 into 7, 1 into 49.
ठीक है, दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट. ऑल्सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अब अगर मेरे पास 1, 7 और 49 ये ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो मेरे को सिर्फ मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी हो सकती है, सिर्फ 49 की ही हो सकती है. मीन्स दीज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक फॉर दिस 49 ओनली. राइट नाउ इसके बाद एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. ऑब्वियसली ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, right? Order can be different, but the set will be same. Means 1, 7 and 49 will be the prime factors of 49 only. I can switch the order. Like supposingly if I have 1 into 49 equals to 49, then 49 into 1 is also 49. Very obvious, right? Now moving ahead to our first example from our NCERT, it says consider the number. Actually there is one error in this also, I'll just write it here. Consider the number 4 raised to power n, where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 ends with digit 0. तो देखो भैया क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 4 रेज़ टू पावर n, जहाँ पे n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. हमें बताना है कि n की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो फॉर विच 4 रेज़ टू पावर n है, अगेन करेक्शन, फॉर विच 4 रेज़ टू पावर n ends with the digit 0. Now see one thing I'll tell you just like briefly, एक पहले फिर मैं आपको बताती हूँ आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. ना 4 रेज़ टू पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मेरे को इसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ. जस्ट ए सेकेंड. ओके नाउ so 4 raised to power n can be written as 2 into basically 2 raised to power 2n, राइट. अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये जो 4 है, अगर मैं 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 2 जा 4 होता है. प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 एंड 4. सॉरी, नॉट प्राइम फैक्टर्स, बेसिकली फैक्टर्स विल बी 1 2 एंड 4 एंड प्राइम फैक्टर विल बी ओनली 2. Right, so 4 raised to power n can be written as 2 raised to power 2n, right? So the only prime in the factorization of 4 raised to power n is 2, right? And also अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या पता चलता है कि इसकी फैक्टराइजेशन में और कोई प्राइम हो भी नहीं सकता, बिकॉज दिस इज यूनिक. हमने पढ़ा ना एक चीज़ पीछे, यूनिकनेस, यूनिक होगा. ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके लिए 0. बेसिकली अगर हमारा 4 रेज़ टू पावर n जो है अगर वो 0 से एंड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 से भी डिविजिबल होगा. करेक्ट, हमने पढ़ा है ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. क्या होता है, दैट द लास्ट डिजिट शुड बी 0, राइट. तो अगर अब ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेट करके इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि अगर वो 0 से एंड कर रहे हैं, तो अगर वो 0 से एंड करेगा तो वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. बट अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो वो किस टर्म्स में होना चाहिए था, 5 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर m, ऐसे टर्म्स में होना चाहिए था. बट ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल. परफेक्ट. Now moving ahead, next example, find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. We know this very clearly. Now see, 6, 2 3s are 6. Next is what, 20. 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. तो अगर मेरे को 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 3. 20 के लिखने हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम एंड एचसीएफ, तो देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल.
लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2⁻² इंटू 5 एंड दिस इज 2⁻1 इंटू 3⁻1 टू बी मोर प्रिसाइज. नाउ अगर मुझे एलसीएम और एचसीएफ लिखना है तो पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं. एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो वही एचसीएफ होगा, 2⁻1 कह सकते हो. और अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम में क्या आ जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 5. आई होप दिस इज क्लियर. 60 इफ यू वांट टू कैलकुलेट. ठीक है, तो एचसीएफ, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन बताने जाऊँ जो कि बहुत बच्चों वाली बात है, बट स्टिल एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स एंड एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. लेट मी जस्ट क्लियर द स्लाइड. there is one more important thing that we should be aware of. देखो, एक रूल होता है for any two positive integers a and b. For any two positive z represent integers a and b, HCF of a and b into LCM of a and b equals to product of a and b. I hope this is clear. देखो, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है. अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो उनके HCF और LCM का सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थ्योरम एंड वेरी बेसिक, मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, अब नाउ इसके बाद हमारे पास, हमने सेकेंड एग्जाम्पल तक कर लिया, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल भी हैं. ठीक है, उनके जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ बिकॉज एग्जाम्पल आई गेस यू पीपल कैन डू योर सेल्फ. लाइक अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 3 क्या, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द LCM. तो HCF तो अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग. एंड हेंस फाइंड द LCM. देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ऑल्दो अभी हम नेक्स्ट आगे फर्दर क्वेश्चंस में करेंगे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ. देखो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम 96 और 404 की बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स पता चल जाएंगे वहाँ से हमें. एंड हेंस फाइंड, जब भी एक चीज़ टू बी, वन पॉइंट टू बी नोटेड इज, जब भी हेंस बोला जाए ना, हेंस फाइंड द LCM, हेंस फाइंड द HCF, हेंस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो आपको कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B. आपको ये रिलेशन यूज़ करना है जब भी हेंस वर्ड यूज़ किया जाए. दिस यू हैव टू मेक श्योर फॉर श्योर. ठीक है, अब जैसे इन्होंने इसके बाद पहले HCF मांग लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके बाद उन्होंने बोला हेंस फाइंड द LCM, तो हमारे पास नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, HCF हमें मिल जाएगा और वहाँ से हम LCM निकाल सकते हैं इस रिलेशन से. ठीक है, HCF एग्जाम्पल 4 में उन्होंने पूछा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये तो बेसिक है, सिंपल, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और LCM और HCF निकाल लेना है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो मैं आपको मतलब मैं कौन सा मैं 7429 की करके दिखा देती हूँ. ठीक है, बेसिकली दिस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, मेजरली थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कैन मार्क दीज ऑल्सो. तो मैं आपको थर्ड करके दिखा देती हूँ या तो, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट नो. सो विल डू थर्ड पार्ट and then we'll do this fifth part also we will do, but first let's do third part. Now 3, 8, 2, 5, जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे what we will get, जब हम इसे पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 5 से 85, फिर 17 से, oh I guess I did something wrong, no?
not 17. This won't be 17. 5, 85, now 5, 17, then 17, 1. This is correct. Okay. Now we have got the prime factorization. We are done with the prime factorization. I'm so sorry for this. Okay, so we are done with the prime factorization. Now we will write basically all the prime factors. 3 square into 5 square into 17. Perfect. Now for the next one, next we have 5005. Now for 5005, it will be divisible by 5, 1001. Then next it will be divisible by, basically, so third part we have done. Now we are doing the fourth part, right? So also just let me just do it, write it nicely. No, it's not looking nice. Just a second. Okay, now 1001. Now this will be divisible by 7, 143, then 11, and then 13. So these prime factors for 5005 will be 5 into 7 into 11 into 13. Now for the, I don't know why the pen is not working nicely today. Now for the fifth part, let us do for the fifth part now. Make sure you people are doing it side by side. अगर आप अभी छोड़ दोगे ये सोच के कि हम बाद में कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला. Mark my words. It is very important to do it side by side. Now 7429. This will be divisible by 17, 437, then 19 on 23, then 23. So the prime factors will be 17 into 19 into 23. Now you are left with 140 and 156. I guess this you can do yourself. It is not very difficult. These are the simplest ones. The more difficult ones I have done. Okay, I guess this question is clear to each and every one of you. Now moving ahead to next question. Next question says, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. Again similar type, but in this we have to prove the relation जो अभी मैंने आपको बताया था कि LCM into HCF is equals to product of two numbers. Okay, so let us start with the first part. Oh, sorry. Okay. So what does the first part say? Okay, this is only fine. 26 and 91. Okay, should I write it like this only? 26 is basically 13 2s are 26. 91 is basically 13 7s are 91. Okay, now find the LCM and HCF. So now when we talk about LCM and HCF, LCM would be and HCF would be. So HCF would be 13. Perfect. And LCM would be 13 into 2 into 7. That is, okay, I'll write only, no? 13 into 2 into 7. And this is equals to, I'll write with other color. And this is equals to 182. Okay, so LCM is 182 and HCF is 13. Now we have to verify it. So how we will verify it? LCM into HCF, you have to present it this way only. First of all, you will write the prime factors of 26, then 91, then you will write LCM, then you will write HCF, and then you will write this relation that LCM into HCF is equals to A into B. So LCM is 182, HCF is 13. Okay, also I'll just wait for a second. I'll tell you now step by step how you have to present it, how you need to present it. So 26 can be written as 13 into 2,
then 91 can be written as 13 into 7. Okay, now after this LCM, 13 into 2 into 7, HCF 13. Okay, and this is equals to 182. After this you will write LCM into HCF is equals to A into B. Now this is LHS, this is RHS. What we will do now? Now what you have to do, you will write LHS and we will solve LHS. LHS is what? LCM into HCF. 182 into 13. This is equals to 2386. Then we will write RHS. RHS is what? A into B. A into B is what? 26 into 91. This is also equals to 2386. After this you will write LHS is equals to RHS, hence proved. I hope this is clear how you need to attempt it, right? So this is the first part. How you need to attempt it, I guess it is clear to each and everyone. Now moving ahead, now I'll tell you the important question from all these three parts. The second part is the most important one. Second part is the most important one. I guess now see, I'll not do all the parts like this, but I've told you how you need to attempt. I'll tell you how you need, means I'll solve them for you, but I'll not attempt them this way. Okay, now moving ahead to second part. Second part says 510 and 92. Okay, so 510, okay, 510 and 92. So 510 is basically divisible by 2 first of all. So we basically 510 has prime factors 2, 3, 5 and 17. 92 has prime factors 2, 2, 23. LCM is what? 2 square into 23 into 5 into 3 into 17. And HCF is what? Only 2 is there. So 2 is the HCF and LCM is 2 square into 23 into 17 into 5 into 3. This is equals to 2, 3, 4, 6, 0. Perfect. Now you can verify it now, right? Basically you can write it, no? 2, 3, 4, 6, 0 into 2 equals to 510 into 92. 46920 equals to 46920. Hence proved. Clear? Now third part says, third part is basically 336 okay, 336 and 54. So 336 has prime factors 2, 2, 2, 2, 3, 7. 54 has prime factors 2, 3, 3, 3. LCM 2 raised to power 4, 3 cube into 7. HCF 2 into 3, 6. Okay. Now LCM will be equal to 3024. Now 3024 into 6 equals to 336 into 54. I have told you how you need to attempt it. So please don't mess up with the attemptation. I've already told you with the one part how you need to attempt. If I'll do all the parts like that, then we won't be able to complete this session today. Okay. So with this we are done with the second question. I hope the second question is also clear to you people. Moving ahead to third question. Third question says find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. This is a very basic question. This is what we have been doing till now. So third part out of all these three is very important. Means, see, I'm not telling you very important, but
which part is important amongst the all given parts, that I am telling you. Okay, now see, first part, what does it say? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Simple, I am telling you the first part. We have 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, and 3 1s are 3. Then we have 15, 3 5s are 15. Then we have 21, 3 7s are 21. HCF is what? 3. LCM is what? 2 square into 3 into 5 into 7. Did you people get how I did it? See, now I'll tell you. हमने prime factorization करी. Let me just write it first clearly. 15. Okay. Now see. First of all, we did prime factorization. 12 we know. I don't think so I need to explain the prime factorization. Now HCF, when we talk about HCF, highest common factor, 3, 3, 3. It is common in all these 3, 3. Now when we talk about LCM, the highest part, basically from here we get 2 square, 3, 5 and 7. I guess it is clear now. Okay. So if you want the value, it will come out to be 420. Okay. Coming to next part. Now next part says 17, 23 and 29. We are very well clear that 17 is what? 1 into 17. 23 is what? 1 into 23. 29 is what? 1 into 29. So what is the LCM? 17 into 23 into 29. What is the HCF? Do you people get this? Okay. 1 is the HCF and LCM is 17 into 23 into 29 to 1, and this will be equal to 11339. I hope it is clear. See, you people have to show the prime factorization like this for all the parts. Make sure to show it. Don't just run with the question. Question is to be attempted with all the peace and calm. Okay. Now coming to the third part. Third part says 8, 9 and 25. We know 8 is what? 2 cube. 9 is what? 3 square. 25 is what? 5 square. Okay, I have written it in a very simple manner. I have not shown the prime factorization. Okay, now LCM and HCF. What is the HCF? Nothing is common, 1. What is the LCM? 2 cube into 3 square into 5 square. Basically 8 into 9 into 25, and this is equals to 1800. I hope this is clear. And out of all these 3 parts, third part is very important. Okay. Now coming to next question. Next question says, given that HCF of these numbers is 9, find LCM of this. Mark my words, this question is also very important. Okay, so in this question I'll explain you the relation, that relation I was talking about in example. Basically after example 2 I told you the relation LCM into HCF is equals to A into B. That will be cleared in this question. Okay, so now see, we know HCF into LCM is equals to product of two numbers. You are not supposed to write A into B, you will write full product of the numbers. Okay, now HCF is given 9, LCM we need to find. First number is 306 and second number is 657. So LCM will be equal to 306 into 657 upon 9. Okay, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6. 3 3s are 9, 3 4s are 12, and LCM comes out to be 22338. This is our answer. I hope this question is clear. This question is very important, so be very clear with this question. Okay, now I guess we should move forward. Coming to our next question. Question number, so now see, after this we had question number 5. Question number 5 is, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n.
So this is the similar question that we just did in example. First example only, 4 raised to power n. Same type of question it is, question number 5. So I'm not doing it. I hope you people will be able to do it, because see, I'll just, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ तुम लोगों को क्या है। 5th क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, 6 रेज टू पावर n है। देखो जब भी, अब मैं 6 रेज टू पावर n, देखो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए एनीथिंग रेज टू पावर n की इट विल एंड विद 0 और नॉट, आपको बस एक चीज़ करनी है, जो आपको बेस में नंबर दिया हुआ है। बेस नंबर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेस नंबर? बेस नंबर मीन्स बेसिकली, सी, if we have been given 6 raised to power n, so base number is what? This 6, this is base. In exponents and power, I hope you people have studied this. Okay, this is known as base and this is known as power, right? So now whenever we are given such questions in which we are asked whether this will whether it will end with digit 0 for any natural number n, for such questions what you need to do is, जो भी आपका बेस है उसके प्राइम फैक्टर्स कर, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। अब मुझे पता है 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, यही इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, एंड होल की पावर क्या है, n। अब मेरी बात सुनो, जब भी हमें 0 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगेन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर 0 एंड डिजिट होना चाहिए, वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 5 भी तो होना चाहिए, पर 5 तो है ही नहीं, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। ठीक है, सो आई हैव नाउ मेड यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस क्वेश्चन, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कन्फ्यूजन लेफ्ट नाउ in this question. Okay, moving ahead, now next question says explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Again, composite numbers are the numbers which are not prime, which have more than 2 factors, number itself and 1, उनसे उनके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं। उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आधे बच्चे क्वेश्चन कर जाते हैं पर उन्हें यही नहीं पता होता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया। ठीक है, तो अब देखो, ऑल्सो वन मोर थिंग, ये और ये दोनों अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, बच्चों को ये भी नहीं समझ लगता कि क्या है, ये एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 13 कॉमन ले लिया, 7 into 11 plus 1, 13 into 11 into 7 is 77 plus 1, 13 into 78। ठीक है, नाउ दिस 78 कैन बी रिटन एज 30, बेसिकली 13 तो है ही है, 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 into 3 into 2। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, जो मैं ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके मोर दैन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं है। जस्ट आंसर मी विद दिस सिंपल क्वेश्चन, हमें जो ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके मोर दैन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं। नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर है, नंबर इटसेल्फ और 1 को छोड़ के और फैक्टर्स हैं कि नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। दैट सिंपल इट इज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, यही बोला है हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो ये भी सिमिलर है, इसमें से भी मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5 into 1008 plus 1, 5 into 1009। ठीक है, अब अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी तो मेरे पास एक फैक्टर 5 बन रहा है, एक फैक्टर 1009 बन रहा है, एक 1 बन रहा है। ठीक है, और एक 5 into 1009 बनेगा। ठीक है, मैं देखो इसकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ऐसे ही फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो, ऐसे ही फैक्टर्स बन जाते हैं।
ठीक है, तो अब मेरे को इसमें भी पता चल रहा है इट हैज़ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। परफेक्ट, आई गेस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा बुक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बुक्स में आज जब आप देखते हो, एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करते हो, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक्स्ट्रा बुक्स में इसके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ बस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओके, नाउ सी, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ना कभी इस एक्सरसाइज की रिविज़न भी करते हैं, तो रिविज़न के टाइम पर भी हम लोग ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो गलती से भी मत छोड़ देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ in trend from past so many years, I can't even tell you people. So this question is very important. Now see, what is this question telling us? एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि, दोनों सेम पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। जो लड़की है सोनिया, वो उसको लगता है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट। अब उन्होंने बोला कि मान लो ये दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आप हमें ये बताओ कि अब ये कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने मिनट बाद मिलेंगे, वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ कितना टाइम दोनों लेते हैं, एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। इतने टाइम के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये आपको लिख के बता देती हूँ अटेम्पटेशन। मैंने आपको क्वेश्चन से ब्रीफ कर दिया है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, मैं एक बार अटेम्पटेशन बता देती हूँ, ठीक है। नाउ सी, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 round is equals to 12 minutes. You will write whole 12 minutes full लिखोगे आप। फिर टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 round, I guess I have written wrong ना, just a second, 18 minutes इसको लग रहे हैं और 12 minutes इसको लग रहे हैं, 12 minutes, ठीक है। पूरा लिखेंगे आप मिनट्स भी। अब उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, टाइम टेकन बाय बोथ to meet again is equals to LCM of 18 minutes and 12 minutes, पूरा लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप LCM of 18 and 12 लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट्स का तो LCM से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आई गेस दिस इज़ क्लियर। ये आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप फटाफट नोट डाउन कर लो, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, LCM of 18 and 12 मिनट्स लेना है, ठीक है। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अब जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो हमें पता है, देखो 18 का एलसीएम बेसिकली, क्या बोल रही हूँ, नॉट 18 का एलसीएम, बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 और 12 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3, तो एलसीएम क्या आ जाता है हमारे पास, 2 square into 3 square, that is 36. So after 36 minutes they both will again meet. Okay, I guess this question is very clear and it is very important to make this question clear to people, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब
ऐसा नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ये तो कभी भी गलती से भी मत छोड़ जाना, कुछ करो ना करो इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ओके, सो आई गेस अब तक का सब कुछ सबको क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिविजिटिंग इर्राशनल नंबर्स। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास आती है एक थ्योरम। उससे पहले आई गेस तुम्हें पता ही है, बट फिर भी इर्राशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मेजरली जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स के नहीं होते, जैसे √5, √2, √3, ऑल दीज आर इर्राशनल नंबर्स अलॉन्ग विद पाई। ओके, ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऑल्दो आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल मैंने एक आपको ओवरव्यू टाइप बता दिया है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है एक थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइम नंबर। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए व्हेन ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। समझो, ये एक थ्योरम है, क्या कहती है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, लेट्स से 2। अगर ये जो प्राइम नंबर है ये किसी भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब क्या है, कोई भी, अब a क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। देखो पहले समझ लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारे पास क्या है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, और a हमारे पास क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक प्राइम नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर प्राइम नंबर जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तुम्हें। अगर मेरे पास मान लो कोई भी प्राइम नंबर है 2, ठीक है, अब अगर और मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, नो, मान लो मेरे पास 4 है, ठीक है। अब अगर ये 2 इस 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 डिवाइड 16, तो ये जो ये 2 है ये इस 4 को भी डिवाइड करेगा, करता है। समझ में आई बात क्या कहना चाहती है ये थ्योरम? ठीक है, ये थ्योरम ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछी जाती, बट जब भी हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है तब ये थ्योरम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है, बेसिकली ये थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम इस ऐसे जब भी हमें प्रूफ करना है कि ये कोई नंबर इरेशनल है तो हम क्या करते हैं, हम ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल। हम अज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है, रैशनल। अब अगर √2 रैशनल होगा तो √2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में। मान लो मैंने a/b लेट कर लिया, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, वेयर a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 आर को-प्राइम्स। ठीक है, हेंस √2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, इतना समझ आया? अब मैं क्या करती हूँ, इसके बाद √2b इक्वल्स टू a, इस b को उधर ले गई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, 2b² इक्वल्स टू a² आ जाता है। ठीक है, b² इक्वल्स टू क्या आ जाता है, a²/2। अब यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे लगेगी वो वाली थ्योरम जो हमने अभी पढ़ाई मैंने आपको, कि इफ़ मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करना चाहिए। करेक्ट। सो इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है, 2 डिवाइड्स a²,
इसको आप प्लीज़ इंग्लिश में लिख लीजिएगा। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब इसके बाद हमें, मैं इधर से इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ गई है हमारे पास। तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो हो जाएगा। अब अगर 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a/2 जो है वो किसी इंटीजर c के इक्वल है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो ये c है वो एक इंटीजर है, a इक्वल्स टू 2c हो जाएगा, करेक्ट। ये समझ आया सबको। अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन थी 2b² इक्वल्स टू a², ये वाली इक्वेशन 2b² इक्वल्स टू a², इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2b² इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, 2b² इक्वल्स टू 4c², b² इज इक्वल्स टू 2c², b²/2 इक्वल्स टू c²। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ क्या पता चल रही है, बेसिकली क्या मेरे को यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ट्रू। यही सेम चीज़ हमने यहाँ करी और यहाँ पे हमने इसको c के इक्वल लेट करके हमने वापस से ये सेम स्टेप्स लगाए, ठीक है। पर अब यहाँ से मेरी कंक्लूजन क्या निकलती है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो 2 जो है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है, बेसिकली b को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो a का भी फैक्टर है और वो b का भी फैक्टर है, जिसका मतलब क्या है कि a और b को प्राइम्स तो नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी अजम्पशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या प्रूफ कर देते हैं कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, जस्ट अ मोमेंट, प्रूफ दैट, अच्छा देखो इसके बाद क्या है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो मैं तुम्हें ना √2 ही ढंग से करके दिखा देती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए और तुम आगे खुद कर सको। देखो हमारे पास था प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो मैं एक बार तुम्हें सब कुछ लिख के बता देती हूँ। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तुम लोगों की रिविजन हो जाएगी, आराम से देख लो। लेट अस assume that √2 is rational, ठीक है। तो √2 को हम लिख सकते हैं a/b, a को लिख सकते हैं √2b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a² इज इक्वल्स टू 2b², a²/2 इज इक्वल्स टू b²। यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a ऑल्सो बाय थ्योरम, ठीक है। इतना समझ आया। अब जब हमने इसको ये लेट कर लिया कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करता है, 2 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब हम क्या लेट कर लेते हैं कि a/2 जो है वो किसी c के इक्वल है, जहाँ पे c जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 2c आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं कहाँ गया, इसमें पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास आएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b², 4c² इज इक्वल्स टू 2b², ठीक है। 4c² इज इक्वल्स टू 2c² पे थे ना, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 4c² इज इक्वल्स टू 2b² इज इक्वल्स टू 2b², तो 2c² इज इक्वल्स टू b², c² इज इक्वल्स टू b²/2, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b ऑल्सो बाय थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है। सो अब इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, हेंस 2 डिवाइड्स बोथ A and B so A and B have a factor of 2, therefore A and B are not co-primes, hence our assumption is wrong. Root 2 is irrational. I hope it is clear to you people. आपको कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव, कोई भी रूट वाला हो, कोई भी रूट 2 रूट 3, जैसे कि अभी एग्जाम्पल 5 जो है यहाँ पे आपसे रूट 3 पूछ रहा है, हाँ, तो यहाँ से रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो ऐसे आपके पास कोई भी हो, कितना भी बड़ा रूट हो, मतलब कोई भी ऐसे वैल्यू हो, उसको आप इस वे में प्रूफ कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। रूट 3 और रूट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इनमें से पूछूं, मतलब इनमें से बताऊं तुम्हें कि रूट वाले क्वेश्चंस में से क्या इम्पोर्टेंट है, तो रूट 3 और रूट 5 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमें क्या कहा है, सो बेसिकली एग्जाम्पल 6 में उन्होंने हमसे बोला है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे प्रूफ करते हैं इरेशनल, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो इनमें भी हम लोग सेम फंडा लगाते हैं, सिंपल है। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, रैशनल है। ये हमने एजम्पशन है ये हमारी, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको लिखना है, अब तो मैं 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकती हूँ, a बाई बी वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स कंडीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलता है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। 5b माइनस a इज इक्वल्स टू रूट 3, या p भी है, ठीक है। अब मेरी एक चीज़ सुनो, a और b क्या है, इंटीजर्स है। 5 माइनस a बाई बी क्या है, रैशनल है। 5 को मैं 5 इज़ अ रैशनल नंबर, a बाई बी इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, इंटीजर्स हैं a और b, को प्राइम्स हैं, रैशनल है, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म मेरी क्या हो गई, रैशनल हो गई, ठीक है। बट मुझे पता है रूट 3 क्या है, इरेशनल है। रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या प्रूव होता है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये बच्चों को, फॉर श्योर लगता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं 5 माइनस रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 5, 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2, 7 रूट 5, 6 प्लस रूट 2, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि इन्हें इरेशनल प्रूफ करो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी वेटेज कितनी है, कितने मार्क्स में है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है,
तो आपको बेसिकली 3, 4, 5 मार्कर में आते हैं, तो आपको 5 माइनस रूट 3 को तो इरेशनल प्रूफ करना ही करना है, आपको रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। बट अगर ये शॉर्ट में आता है, 2 मार्कर में आता है, तो आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करके नहीं दिखाना, आपको 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है बस, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 को मैं a बाई बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों ही कोप्राइम्स हैं। तो 5 माइनस a बाई बी क्या आ गया, रूट 3। अब मुझे पता है ये जो 5 माइनस a बाई बी की टर्म है, जो मैंने एज्यूम करा है उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी, और ये जो रूट 3 है ये क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। बट ये तो इक्वल टू मतलब इक्वेट नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से हमारी अजम्पशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, और 5 माइनस रूट 3 इरैशनल प्रूव हो जाता है। आई होप समझ आया सबको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट 3 रूट 2 इज़ इरैशनल। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 रूट 2 इज़ इरैशनल। अगेन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 3 रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अगेन a एंड b आर कोप्राइम्स एंड a एंड b आर इंटीजर्स। रीअरेंज कर लेंगे तो रूट 2 क्या आ जाएगा, a बाई 3b। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो रखी है कि a बाई 3b तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, जबकि जो मेरा रूट 2 है वो क्या है, इरैशनल। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि 3 रूट 2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। आई होप ये सबको क्लियर है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको वेटेज के हिसाब से आंसर करने होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इनमें बच्चों को क्यों आती है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्पटेशन ही नहीं समझ आती बच्चों को। ये तो ज़रूर बच्चे को स्टेप्स जब बच्चे देखते तो बच्चों को ये ज़रूर समझ आ जाता है कि हमें पहले ऑपोजिट लेट करना है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है, पर उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्पटेशन नहीं समझ आती। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है कितने मार्क्स का है। अगर ये लॉन्ग में आता है, 3, 4, 5 मार्कर में आता है, तो आपको जो रूट की टर्म है उसे भी इरैशनल प्रूफ करना है पहले, और फिर आपको जो पूरी एक्सप्रेशन दी है उसे इरैशनल प्रूफ करना है। अगर ये 2 मार्कर में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। आपको रूट वाली टर्म को इरैशनल प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती उस केस में, अगर ये 2 मार्कर में आता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। 2 सेकेंड देख लो कि क्या करा हुआ है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरैशनल। मैंने अभी आपको बताया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगैन बिकॉज आई हैव गिवन एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रूट 2 को, तो ये मैं रिपीट नहीं करने वाली। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट वी हैव प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरैशनल। अगैन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे 5 माइनस रूट 3 प्रूफ किया था, बट अगैन मैं बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगैन मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। हमने अगैन हम ऑपोजिट लेट कर लेंगे कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो मैं इसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं और कोप्राइम्स हैं, ठीक है। अब 2 रूट 5 क्या आ जाएगा, a बाई बी माइनस 3 रूट 5 क्या आ जाएगा, a माइनस 3b बाई 2b। यहाँ से हमें क्या प्रूव होता है कि ये पूरी टर्म क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इरैशनल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है और ये एक इरैशनल नंबर प्रूव हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब देखो जो मेजर डिफ़िकल्टी आती है ना, वो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आएगी तुम लोगों को। ये तो अब तुम्हें समझ आ गए होंगे फिर भी। देखो ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में है 1 बाय रूट टू सॉरी 1 बाय रूट 2, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, आई गेस दैट वुड बी मोर बेटर।
जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 2 seconds, ओके। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 1/√2, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 7√5, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6+√2। देखो 6+√2 तो नहीं मैं करने वाली क्योंकि ये तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 7√5 टाइप का भी मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें फर्स्ट वाला करा देती हूँ 1/√2। 1/√2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दीज ऑल्सो। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या है, ये रैशनल है। अगेन हम ऑपोजिट लेट कर लेते हैं कि 1/√2 क्या है, रैशनल है। अगर 1/√2 रैशनल है तो मैं इसे a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं। तो यहाँ से b/a क्या आ गया √2, और यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं और क्या हैं, को प्राइम्स हैं, ठीक है। अब देखो b/a क्या आ गया √2। अब अगर मैं इसको ऐसे वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो b/a तो क्या हो गया, मेरे पास एक रैशनल नंबर हो गया, और जो √2 है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। हेंस यहाँ से हमारी असम्पशन क्या हो जाती है, रॉन्ग, और ये प्रूव हो जाता है कि 1/√2 इज़ इरैशनल। आई होप ये समझ आया सबको। इनमें से भी मैं मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइपो समझ आ चुकी होगी बहुत अच्छे से कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं थ्रू आउट दी एक्सरसाइज, ठीक है, और थ्रू आउट दी चैप्टर मेजरली, बिकॉज यहाँ पे ही हमारा चैप्टर जो होता है वो होता है ख़त्म, तमाम, दी एंड। आई होप आप लोगों को समझ आया हो फर्स्ट चैप्टर। दिस इज़ वेरी बेसिक चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Also आपको ये पूरी definition learn होनी चाहिए। फिर हमने एक थ्योरम भी पढ़ी, if p is prime and p divides a square then p divides a where a is a positive integer। फिर हमने √2, √3, √5 को irrational proof किया। 5 minus √3, 6 plus √2, 3 plus 2 √5 को इरेशनल प्रूफ किया। 3√2, 7√5, 1/√2 इन्हें इरेशनल प्रूफ किया। हमने एक रिलेशन पढ़ा, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। हमने एक टाइप के क्वेश्चंस देखे 4n, 6n वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर, कि वो जो है कि दे मतलब चेक करने वाले कि दे एंड विद द डिजिट 0। फिर हमने एक सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन किया जहाँ पे रवि है, सोनिया है, इनको इतना इतना टाइम लगता है, तो ये कब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। हमने एक कॉम्पोजिट नंबर वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। और फिर तो बाकी तो हमने बेसिक एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चंस किए हैं। यही है इस पूरे चैप्टर में। दिस इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर होल बुक, ऑफ योर होल सिलेबस। नथिंग इज़ मोर ईजियर देन दिस चैप्टर। सो देखो ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ही है, पर फिर भी बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इनको प्रूफ करने में, जबकि पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे स्टिल, बट इट्स फाइन। आई होप आप लोगों को तो समझ आ गया होगा सब कुछ बहुत अच्छे से। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई टेल यू, आई डेफिनेटली हेल्प यू जितना हो सकेगा, ठीक है। एंड पूरी जर्नी में साथ रहेंगे आपकी। जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको कुछ भी फीडबैक देना है, कोई भी डाउट पूछना है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अच्छा लगा हो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, stay safe, stay healthy, eat healthy, keep studying, keep rocking, make your parents proud. Thank you so much.